am Rajiv Ranjan, and I will be taking up your humanities with you. And when I speak about humanities, I imply the various segments of humanity, including history, political system, civics, geography. Friends, our first chapter which we have to consider in history, and let us begin right now, no need diluting over the issue, is the rise of nationalism in Europe. The rise of nationalism in Europe can be attributed to several cross currents of history. As it is, the nationalistic impulses in Europe started right from the time of Protestant Revolution in Europe. With the challenge to the Pan-Europa Catholic Church, every part of Europe began to exercise its religious and social denomination. तो पहला रीजन causes फर्स्ट, जैसा देखिए दिखा रहा है, दिस इज द स्टैचू ऑफ क्राइस्ट इन रियो डी जेनेरो, और ये बहुत फेमस पेंटिंग है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक. दिस इज द आइडियल ऑफ मैन. उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक आदर्श स्थापित हो गया था कि पूरा विश्व एक भ्रातृत्व है, एक ब्रदरहुड है, एंड एवरीवन should exist in a spirit of coexistence, mutuality, brotherhood and mutual support. तो देखिए पहला चीज कॉजेज में जो है, ये पैन यूरोप कैथोलिक चर्च को चैलेंज करने वाला प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशंस in most part of Europe. Part of Europe challenging the Pan-Europa Catholic Church. तो बिफोर द 15th सेंचुरी पूरा का पूरा यूरोप एक कैथोलिक चर्च के हेगोमनी में interlinked tha. The Pope in Rome, with the support of the cardinals, the archbishops, the bishops, the abbots and the friars, it had a framework of administration encompassing all over Europe. So in a sense, Europe was one nation. But when in the 1450s Martin Luther challenged the Catholic Church and pasted his 95 Theses in a city of Wittenberg in Germany, it heralded the clarion call of revolt against one nation Europe. इसके बाद क्या हुआ कि in different segments of Europe Protestant movements began. Martin Luther in Germany, Zwingli in Switzerland, Calvin in France,
John Knox in Scotland, and the playboy of Europe, Henry VIII in England. Wherever they revolted against the church, जहां जहां उन्होंने विद्रोह किया कैथोलिक चर्च, उन्होंने अपनी एक नेशनलिस्टिक इंपल्सेस जनरेट की, और इस नेशनलिस्टिक इंपल्सेस में नेशनल लैंग्वेज भी था. मार्टिन लूथर नॉट ओनली was the harbinger of a German state, he was also a catalyst for the generation of the German language. In that way, John Knox in Scotland, एंग्लिकनिज्म जैसे ही हेनरी VIII ने इंग्लैंड में एस्टैब्लिश किया तो इंग्लैंड भी एक नए राष्ट्र के रूप में उभरने लगा. तो पहला रीजन ये था. जो प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन हुआ उसने कैथोलिक एकता को पूरे यूरोप में खंडित कर दिया. इट डिसइंटीग्रेटेड द मोनोलिथिक पैन यूरोपा कैथोलिक चर्च, रिजल्टिंग इन द फ्रैगमेंटेशन ऑफ द कैथोलिक किंगडम इनटू वेरियस नेशन स्टेट्स इन डाइवर्स पार्ट्स ऑफ यूरोप. सेकेंड चीज, इसके बावजूद भी there was a semblance of multinational identity in the Holy Roman Empire. Second, the Holy Roman Empire disintegration. जब प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन हुआ और इसके बाद द 30 Years वॉर was fought from 1618 to 1648 on the precise platform of religious intolerance, the Catholics versus Protestants. Finally, the Protestant forces gained an edge in 1648 and the Treaty of Westphalia was signed in 1648. इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद भी ये होली रोमन एम्पायर, जिसको कि हैब्सबर्ग एम्पायर कहा जाता है, ऑस्ट्रो हंगरियन हैब्सबर्ग एम्पायर, ये बेसिकली इसका केंद्र बिंदु ऑस्ट्रिया के वियना में था. डायनेस्टी हैब्सबर्ग थी, लेकिन इसके अधीन पूरा का पूरा आज का जर्मनी, पोलैंड, कुछ हद तक कुछ पार्ट्स ऑफ पोलैंड और पूरा बाल्कन पेनिनसुला, हंगरी था, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लेविया, रोमानिया, बल्गेरिया, है ना, all these countries were encompassed in this empire. So it was a multinational empire. जब नेपोलियन ने ऑस्ट्रियन आर्मीज को बैटल ऑफ टिलसिट में हराया तो उसने एक झटके में इस होली रोमन एम्पायर को खत्म कर दिया. और उसका वो कथन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द सो कॉल्ड होली रोमन एम्पायर इज नाइदर होली नॉर रोमन नॉर एन एम्पायर. न वो होली है, न रोमन है, न एम्पायर है. तो इतिहास के इस मुर्दे को कंधे पर ढोने से कुछ नहीं मिलने वाला था. और नेपोलियन ने कंबाइंड आर्मीज ऑफ प्रशा, ऑस्ट्रिया और रशिया तीनों को बैटल ऑफ टिलसिट में हराया था. अब वो इस स्थिति में था कि वो टर्म्स डिक्टेट कर सके. उसने एबॉलिश कर दिया और इसके एबॉलिशन के साथ ही अब देखिए कितने देश सतह पर आ गए. ऑस्ट्रिया अलग हो गया, जर्मन यूनिटी अलग बनी. इसके बाद बाल्कन स्टेट्स बाद में 1919 के
ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन वर्सेल्स के बाद जो साइन हुआ था, तो ये बाल्कन स्टेट्स भी अलग अलग क्रिएट हो गए। हंगरी अलग हो गया, चेकोस्लोवाकिया अलग, यूगोस्लेविया अलग, बल्गेरिया अलग, रोमानिया अलग, मैसेडोनिया अलग, तमाम। तो इतने देश नेपोलियन के इस एक्शन से क्रिएट हुए। और जर्मनी तो तत्काल बना नहीं, लेकिन शुरुआत तो यहीं से हो जाती है। नेपोलियन इन अ वे ही वॉज द कैटलिस्ट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसने वो अनुप्रेरक का काम किया जिसमें यूरोप के तमाम देश इंडिपेंडेंट होने लगे। अगर नेपोलियन ने ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर को कमजोर नहीं किया होता, तो बाद में जर्मनी का एकीकरण होने का पृष्ठभूमि ही नहीं बनता। वो तो जब बिस्मार्क का काल आया, तो बिस्मार्क ने देखा कि जो ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर है ये खोखला हो चुका है, और इसमें प्रशा ऑस्ट्रिया का सेकंड बन के क्यों रहे। तो उसने बड़ा फेमस वो स्पीच दिया है। उस समय इनकी पार्लियामेंट, पूरे ऑस्ट्रो जर्मन एम्पायर की पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट में बैठती थी। तो बिस्मार्क ने उस कंबाइंड डायट में, पार्लियामेंट में, ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया कि वी वुड ऑल लाइक टू सी द प्रशन ईगल स्प्रेड इट्स गार्जियन एंड गवर्निंग विंग फ्रॉम द मेमल टू द डोनेसबर्ग, not tied to a new parliament at Frankfurt, but not tied to another parliament at Frankfurt, but a new one at Berlin. मतलब अब पावर सेंटर फ्रैंकफर्ट से हटके बर्लिन में जाएगा। That the political disease of helping alien nationalities at the cost of their fatherland is a disease peculiar to Germany. That the foremost questions of the day will be decided no more by assembly resolutions and speeches, but by blood and iron. आज के ज्वलंत प्रश्नों का निवारण अब सदन में भाषणबाजी से नहीं होगा, खून और लोहे से होगा। With this speech, actually Bismarck, जो कि देखिए ऑलरेडी ऑस्ट्रिया का खौफ अब खत्म हो चुका था, नेपोलियन द्वारा कर दिया गया था, ऑस्ट्रियन एम्पायर कमजोर हो गया था। बिस्मार्क ने इस मौके का फायदा उठाया। तो एक प्रकार से कह लीजिए ऑस्ट्रिया का अलग नेशन, जर्मनी का अलग नेशन, और तमाम जो स्टेट्स की बात मैंने आपसे अभी की, वो ये सब नेपोलियन के देन हैं। नेपोलियन इज सपोज टू बी द कैटलिस्ट फॉर the nationalistic evolution of Europe. ठीक। तीसरा फैक्टर, the third factor, the French Revolution. देखिए, let us realize this thing properly. A nation is built on the foundation of its ideology, of its popular sovereignty, of its geographical area, है ना, and political solidarity. ये चार चीजों पर राष्ट्र का स्थापना होता है। साम्राज्यवाद में क्या होता है? इंपीरियलिज्म इज फाउंडेड ऑन ब्रूट फोर्स। किसी भी एम्पायर में आपने सुना है कि एक ही राष्ट्र हो? नहीं, कोई भी एम्पायर होगा उसमें कई राष्ट्र होंगे ही। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो पहला चोट किया, वो it struck at the roots of imperialism and autocracy. It struck at the roots of
imperialism. साम्राज्यवाद के जड़ पे ही आघात किया, और जो क्लैरियन कॉल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, दैट वाज द कॉल ऑफ द कॉमन मैन who yearned for nationhood. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोपीय एम्पायर्स ने देखा कि भाई ये तो राजशाही शक्तियों के खिलाफ एक विद्रोह है और ये राजशाही को विस्थापित करेगा, तो उन्होंने एक कोएलिशन बनाया, एक गठबंधन बनाया, और उसमें फ्रांस के लोग अकेले इंग्लैंड, प्रशा, ऑस्ट्रिया, रशिया, 4 देशों के कंबाइंड आर्मीज के खिलाफ लड़े। लेकिन वो राष्ट्रवाद का जज्बा था, वो फ्रीडम का जज्बा था कि वो कोएलिशन विक्टोरियस रहा, और उस कोएलिशन का लॉजिकल आउटकम नेपोलियन था। नेपोलियन वॉज अ चाइल्ड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इन अ वे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्रांसीसी राष्ट्रीयता की जड़ को बड़े गहराई से स्थापित किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने वो आइडियल्स क्रिएट किए जिससे कि एक आधुनिक प्रगतिशील राष्ट्र का आधार बन सकता है। देखिए, बेसिकली इस रेवोल्यूशन ने किया क्या? ये पुरोहितवाद को पराजित किया। इस क्रांति के अंतर्गत राजशक्ति धूल धूसरित हो गई, सामंतशाही फ्रांस से अगर मिटी नहीं तो बहुत कमजोर हो गई, और यही 3 कारक जो है राष्ट्रवाद में रोड़े अटकाते हैं: अत्यधिक धर्मवाद, राजशाही और सामंतवाद। एजीपी टेलर ने लिखा है कि देखिए क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन और कितने दूरगामी इसके प्रभाव थे। इसी बात से आप समझ लीजिए कि एजीपी टेलर इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप लिखता है, इट वॉज नॉट दैट द सोशियो इकोनॉमिक conditions of France were worse than in other continental powers, including Germany and Russia. However, it was in the arisen consciousness of the man, common man, aroused by the writings of Voltaire, Montesquieu and Rousseau, that transformed a small conflagration, a small spark in the streets of Paris to a gigantic conflagration that has still yet been unsurpassed in its reign of terror, in its pompous regicide, in its mass homicide, and above all in its abuse of the ecclesiasia. तो हर तरह से जो दकियानूस, संरक्षणवादी, कंजर्वेटिव, स्टेटस कोइस्ट फोर्सेस थे, सबको फ्रांसीसी क्रांति ने मिटा दिया। एंड इट लेड द फाउंडेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव, एवर वाइब्रेंट फ्रेंच सोसाइटी एंड नेशन। फ्रॉम हियर ऑन फ्रांस इवॉल्व्स इनटू अ मॉडर्न नेशनहुड with its own language, its own geographical frontiers, its own national consciousness, and above all, its own place in the comity of nations. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं रुकते हैं, ठीक है? We'll be continuing it in the future. With this, I thank you for the class. Have a nice time.